اگر اللہ کسی بندے کی مدد کرنے پر آ جائے، سن رہے میری بات، اگر اللہ کسی بندے کی مدد کرنے پر آ جائے، چاہے اکیلا بندہ ہو چاہے پوری قوم ہو، اللہ اپنے قانون فطرت کو بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اپنے قانون فطرت کو بدل دیتا ہے۔ میں نے آج کا جو موضوع منتخب کیا ہے اسے کئی عنوان دے سکتے ہیں۔ ایک کامن عنوان یہ ہے، امن، عافیت، سلامتی، راحت، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ لیکن ہم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، نیشنل طور پر، انٹرنیشنل طور پر جب مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلمان اس عظیم نعمت سے محروم ہے، روز روز اس عظیم نعمت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ سیریا کا مسئلہ لیجئے، فلسطین کا مسئلہ لیجئے، ملک ہندوستان کا مسئلہ لیجئے کہ اس کے بعد زبان سنبھال کے بولنا پڑتا ہے کہ فلاں حکومت آئی تو یہ ہوگا، فلاں حکومت نیکسٹ ٹائم آئے گی تو پھر ایسے بربادی ہوگی، فلاں ایسا ہوگا، یہ نقصان ہوگا، اس طریقے سے خرابی آئے گی۔ الغرض آپ دیکھیے، ہر مسلمان کہیں نہ کہیں جسمانی طور پر ہو یا روحانی طور پر ہو، امن و سلامتی کو ترس رہا ہے۔ دعائیں ہوتی ہیں، کعبۃ اللہ کے اندر فریادیں ہوتی ہیں، اللہ کو پکارا جاتا ہے، گڑ گڑایا جاتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ ہم پر نظر کرم نہیں کر رہی ہے۔ جبکہ امن و سلامتی اتنی اہم چیز ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی مکۃ المکرمہ کے بارے میں۔ اللہ سے انہوں نے کیا دعا کی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار یہ جو مکۃ المکرمہ آج فی الحال جنگل بیابان کے شکل میں ہے، اسے امن والا بنا میرے رب، میرے پروردگار، امن و سلامتی والا بنا۔ پھر اس کے بعد یہاں کے لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تجھ پر بھی رکھتے ہیں، ایسی روزی عطا فرما جو روزی یہاں پکتی بھی نہیں ہے، یہاں اگتی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے، میرے خلیل، ایمان والوں کو تو میں نوازوں گا لیکن کافر بھی تھوڑا فائدہ اٹھائیں گے۔ پتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں کی اس میں مکۃ المکرمہ کے بارے میں۔ پہلی دعا کون سی کی ہے؟ اللہ اس شہر کو امن والا بنا، سلامتی والا بنا، عافیت والا بنا، یہاں بربادی نہیں آنی چاہیے، یا فساد اور بگاڑ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ روزی روٹی سب کچھ نہیں ہے، نہیں ہے، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ روزی روٹی کی دعا دوسرے نمبر پر نہیں رکھتے، اس کو پہلے نمبر پر رکھتے۔ یہی وجہ ہے روزی روٹی اور دنیاوی ترقی کے اعتبار سے دیگر تمام ممالک کا جائزہ لیجئے، وہ اسلامی ممالک سے ضرور اوپر ہے، لیکن وہاں امن دیکھیے، ماں بیٹے کو نہیں پہچانتی ہے، بیٹا ماں کو نہیں پہچانتا ہے۔ ارے کئی ایسی اولادیں ہیں جنہیں پتا نہیں میرا باپ کون ہے۔ اس سے بڑا فساد، اس سے بڑا بگاڑ، اس سے بڑی بربادی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے پیغمبر حضرت ابراہیم نے دعا کی، اللہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، پروردگار اس شہر کو تو امن والا بنا۔ وہی امن جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ المنورہ کے بارے میں دعا کرتے، یاد کرتے ہوئے کہتے، پروردگار اے میرے اللہ، میرے رب، تیرے خلیل ابراہیم نے مکہ کے بارے میں دعا کی تھی امن کی، میں میرے شہر مدینہ الرسول کے بارے میں دعا کرتا ہوں، پروردگار اس کو بھی امن والا بنا جیسا کہ تو نے مکہ کو امن والا بنایا۔ سبحان اللہ، وہی امن آج ہم ترس رہے ہیں، وہی سلامتی آج ہم سے دور ہے، ہم سے ناراض ہے، بچھڑی ہوئی ہے۔ جبکہ اگر میں کہوں آپ لوگوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے،
حدیث نمبر 4263 63 ہے، جس کے راوی ہیں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں ایم اللہ لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن. 3 مرتبہ کہا اللہ کے رسول نے، اسی لیے میں نے 3 مرتبہ دہرایا ہے. حضرت مقداد بن اسود کہتے اللہ کی قسم میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے اسلامی بھائیوں اور نیچے بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، ہر ایک حدیث جانتے ہیں کیا نہیں؟ کس کو حدیث نہیں معلوم ہے ہاتھ اوپر کیجئے. الحمدللہ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر کوئی حدیث سنتے کیا نہیں سنتے؟ منڈی بھی ہلا سکتے ہیں، سر بھی سنتے کیا نہیں سنتے؟ ہر حدیث کیسی ہوتی ہے میں آپ کو اگزامپل بتاتا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر خلاصہ کروں گا، فوائد تو ویسی ہوگا، بھی شروع ہوا ہے. لیکن یہ حدیث دیکھیے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، ہٹ کر ہے. کیا فرمایا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ تھوڑے الفاظ زیادہ ہے نا. ایم اللہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہتے ہوئے سنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان السعید لمن جنب الفتن، خوش نصیب وہی ہے جو فتنے سے بچا لیا گیا، مطلب جو امن میں ہے، جو سلامتی میں ہے، جو عافیت میں ہے، جو بربادی سے بچا ہوا ہے، جو فتنے سے بچا ہوا ہے، جو بگاڑ سے بچا ہوا ہے، جو نقصان سے. یہی ہے نا حفیظ صاحب اس کا مطلب. لیکن دیکھیے وہی ہم سے رشتہ توڑی ہوئی ہے، جیسا ہمارے خون کے رشتے ہم سے ناراض ہو جاتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ فرمایا کہ خوش نصیب وہی ہے جو فتنے سے بچا لیا گیا. آج وہی فتنہ ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے. کہیں نہ کہیں ہمارے پاس یہ ڈر ضرور ہے کہ اپریل کے بعد، مئی آنے کے بعد 2024 کا رزلٹ پتہ نہیں مسلمانوں کے لیے کیا بربادی لائے گا، کیا شامت لائے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ ڈر ہے کہ نہیں ہے کہیں نہ کہیں؟ یہ خوف ہے کہ نہیں کہیں نہ کہیں؟ ارے ہم نے تو حکومتوں کو دوش دینا شروع کر دیا. فلسطین کے اندر ظالم کون؟ اسرائیل. ہندوستان کے اندر کون؟ مسلم دشمن حکمران. فلاں جگہ کون؟ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے دنیاوی دشمن ہمارے امن و سلامتی کے دشمن ہے، وہ ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں. شاید ہم اصلی حالت کو پہچاننے سے دور ہیں، شاید ہم اصلی وجہ کو پہچاننے سے قاصر ہیں. ہم عارضی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے. نہیں میرے بھائی، کوئی حکومت کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یاد رکھیے، میں بہت ہی اصول اور ذمہ داری سے یہ بات بول رہا ہوں. کوئی حکومت کسی کا کچھ نہیں بگاڑتی. سورہ کہف آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، سورہ کہف جو پڑھتے ہیں ان کو یہ آیت یاد آ جائے گی. اللہ فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض. ارے حکومتوں کو دوش دینے والوں سنو، حکومتیں کسی کا کوئی کچھ نہیں کر سکتی، نہ نفع نہ نقصان. ارے بنتا بگاڑتا تو میں ہوں، لوگوں کی حالت اچھی بناتا ہوں تو میں ہوں، اور بگاڑتا بھی ہو تو وہ کون ہو؟ میں. کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض. زمین پر یہ جو تدبیریں آتی ہے آسمان سے آتی ہے. پتا چلا امن و سلامتی ہم سے دور ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہو سکتا ہے، امتحان بھی ہو سکتا ہے، لیکن امتحان کے بجائے ہم عذاب بھی تو سمجھ سکتے ہیں. آسمان سے فیصلہ آتا ہے، آسمان سے. ورنہ دیکھیے نا اللہ کی قدرت، سبحان اللہ. میں آپ کو کیا بتاؤں، اگر اللہ کسی بندے کی مدد کرنے پر آ جائے، سن رہے میری بات، اگر اللہ کسی بندے کی مدد کرنے پر آ جائے، چاہے اکیلا بندہ ہو چاہے پوری قوم ہو، اللہ اپنے قانون فطرت کو بدل دیتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، اپنے قانون فطرت کو بدل دیتا ہے. جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا. ارے وہ جانور ہے، جاندار چیز ہے پانی کے پیٹ کے اندر. کون شخص یہ گمان کر سکتا ہے کہ ایک انسان زندہ مچھلی کے پیٹ میں گیا جو ویل سے بھی بڑی ہے پھر زندہ واپس آیا؟ اللہ نے مدد کی ہے. جب اللہ کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے قانون فطرت ہی بدل جاتا ہے. ارے آگ کا قانون فطرت کیا ہے بتائیے؟ آگ کا قانون فطرت کیا ہے؟ جلانا. ابراہیم علیہ السلام باہر آتے ہیں. ارے پانی کا قانون فطرت کیا ہے؟ ڈبونا. موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ کی قوم اس پار سے اس پار پہنچ جاتی ہے. پھر کیا وجہ ہے
में गिर रहा है। बहुत जोर से बोल रहा हूं मैं, क्या वजह है कि अमन सलामती शायद हमारे दरवाजों पर है लेकिन हम उससे महरूम हैं? क्या वजह है कि हर जगह हर मुल्क में मुसलमान कहीं ना कहीं दहशत और वहशत में मुब्तला है? जबकि अल्लाह ने क्या फरमाया था, मैं तुम्हें सर बुलंद करूंगा। क्या करूंगा? गालिब करूंगा ना। अरे मैं तुम्हें ऐसी ताकत दूंगा कि अगर तुम्हारा नाम उमर है, तुम मदीना में रहते होंगे ना, हजारों मील दूर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा नाम भी सुनना पसंद नहीं करेगा, वैसा तुम्हारा दहशत में पैदा करूंगा दुनिया में। कहा ना अल्लाह ने। क्यों हुआ? अल्लाह की मदद से ही हुआ ना, अल्लाह की नुसरत से ही हुआ। आज मुसलमान परेशान है मेरे भाई, और हल क्या तलाश रहे हैं? नहीं, उनको वोट दिए तो हालत सुधरती, इनको वोट दिए तो हालत बिगड़ती, उन्होंने आए तो हमारा ये करते, इन्होंने आए तो हमारा वो करते। कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने हुजरे में सो रहे हैं, मक्का के अंदर रातों रात प्लान बनता है, सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल करेंगे। प्लान हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह ने बचा के मदीना पहुंचा दिया। इनको कानो कान खबर नहीं हुई। अरे इनके होश तो तब ठिकाने लग गए जब मुसलमान जंगे बदर में इनकी नीच तो नाबूदी के तौर पर फैसला सुना दिया। तब पता चला अरे हमने तो इनको मिटाने का फैसला किया था, ये हमारे ही बहाने पर आ गए। कोई हुकूमत किसी का कुछ नहीं कर सकती है। क्यों? अल्लाह हालत बनाता है, अल्लाह हालत बिगाड़ता है। मेरे भाइयों, ये बहुत दर्द से मैं कह रहा हूं। और अगर हमारी हालत बदलना है तो हमें बदलना होगा। शायद हमारी कोताहियों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से यह हालत रोज बरोज बदतर से बदतर हो रही है। मैं आपको क्या बताऊं? अरे मुस्लिम नौजवान कुछ दिन पहले स्टेटस डालता है कि जुमा मुबारक कहना बिदअत है। 2-3 दिन के बाद वो क्या स्टेटस डाल रहा है? बिदअत है का मतलब पक्का मुसलमान हुआ ना? कितना इल्म है देखिए, जरा सोचिए जरा। जुमा मुबारक बोलना बिदअत है, पक्का आलिम हो जाएगा नहीं? गहरा इल्म है इसीलिए तो बिदअत बोल रहा है ना। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 2-3 दिन के बाद 25 दिसंबर को क्या लिखता है? मेरे तमाम ईसाई भाइयों बहनों को क्रिसमस की मुबारकबादी। सुभान अल्लाह। कैसे अल्लाह हालत बनाएगा जी हमारी? कैसे अल्लाह हमारी हालत की परवाह करेगा बताइए? और 2 दिन के बाद 31 दिसंबर, सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, हमारे मुसलमानों में से जो नौजवान तबका, जो उम्मत मुस्लिमा का रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, कैसी कैसी तैयारी नहीं किए होंगे बताइए? कैसा कैसा प्लान नहीं किए होंगे वो बताइए? कितने कितने पैसे नहीं जमा किए होंगे और बोले हुकूमतें हमारा बिगाड़ती है। कुछ नहीं कर सकती हुकूमतें। 6 लाख का लश्कर लेकर फिरौन बनी इस्राइल के पीछे लगा। वो बनी इस्राइल जो फिरौन के हुक्म से सांस लेती है, फिरौन के हुक्म से सांस छोड़ती है, ऐसी गुलामी की जिंदगी बसर करने वाली बनी इस्राइल के सामने 6 लाख लश्कर के साथ फिरौन समेत अल्लाह ने डुबो दिया। कोई कुछ नहीं कर सकता। हमने हमारी हालत को खुद बिगाड़ा है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आयत है, कुरान की आयत। अल्लाह फरमाता है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। बराबर है हाफिज़ साहब आयत। क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने? जमीन में अगर बिगाड़ पैदा होता है, पानी में अगर बिगाड़ पैदा होता है, दुनिया के किसी खित्ते में अगर बिगाड़ पैदा होता है, तो वो लोगों के हाथों की कमाई का नतीजा, रिजल्ट है। और हम ये बिगाड़ इसलिए पैदा करते हैं ताकि लोगों के बुरे करतूतों का थोड़ा मजा दुनिया में हम चखाएं। हुकूमतों को दोष दे रहे हम। पता है हसन बसरी रहमुल्लाह का नाम सुने आप लोग? कितने पाए के आलिम थे। और हज्जाज बिन यूसुफ का नाम? बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है क्या नहीं? दिमिश्क का जब ये हाकिम बना तो हसन बसरी रहमुल्लाह कहते हैं मा जाअल हज्जाजु इल्ला बिजुनूबिना। अल्लाह ने हज्जाज को दिमिश्क इराक का बादशाह सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से बनाया है। कौन कहते हैं? हसन बसरी रहमुल्लाह कहते हैं ये हुकूमतें अगर हमारी बर्बादी का तमाशा देखती है, प्लान बनाती है, तदबीरें बनाती है, साजिशें करती है, तो अल्लाह की तरफ से होता है। कहते हैं हसन बसरी रहमुल्लाह हज्जाज बिन यूसुफ जो जालिम बादशाह सरदार हम पर मुसल्लत हुआ है ना, वो हमारे गुनाहों की वजह से हुआ है। अब समझ में आया आयत ये ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। और हम है कि हुकूमतों को दोष दे रहे, हम है कि सियासत को दोष दे रहे, हम है कि दुनिया वालों को दोष दे रहे। ऐसा हुआ कि डॉक्टर के पास हम गए, बीमारी मालूम ही नहीं किए,
डॉक्टर ने जैसी तैसी दवा दे दी, हम लेकर आ गए, गोलियां खा रहे, वो बोलते ना नीम हकीम खतरे जान, वैसा जा रहे। अरे हल तलाश करो भाई, हल तलाश करो, सबब जानो कि हमारी हालत क्यों बिगड़ रही है। ये मेरे लिए भी है, हाँ सबके लिए है। आज देखिए कहीं ना कहीं आप इनकम सोर्स के एतबार से देखिए, इज्तिमाई तरीके से देखिए, या कौमी सतह पर देखिए, आलमी सतह पर देखिए, दुनियावी लिहाज से, दीनी लिहाज से, हर तरीके से परेशान है क्या नहीं मुसलमान? वजह क्या है? हुकूमत दुश्मन हो गई है। किसने किया फिर? युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्ज़, अल्लाह ने किया है। मैं ये सोचता हूं कि अल्लाह का इम्तिहान है तो अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाए, सबर की तौफीक अता फरमाए, लेकिन अगर ये अजाब है तो हमें इसका हल तलाशना पड़ेगा। और अगर हम देखते हैं कि हमारी बर्बादी का सबब कहीं हम ही ना हो, तो हमें हल मिल जाता है कि वाकई में ये इम्तिहान कम और अजाब ज्यादा लग रहा है। कैसे? पहला हल देखिए सबब हमारी बर्बादी का, वो ये है कि आज उम्मते मुस्लिमा ने कुरान को नीस तो नाबूद कर दिया है। मैं सूरह फातिहा पढ़ता हूँ, देखिए टाइम बहुत हो गया, मैं अब सिर्फ जो है ना मुख्तसर आपको बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। है सूरह फातिहा, आमीन बोलिए अभी। अरे क्या कितनी बड़ी दुआ है, कितने लोग सही मखरज और तजवीद के साथ सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं? हाथ उठाइए मेरे भाई, अल्लाह मत उठाइए, अच्छा नहीं लगता, हम कुरान से इतना दूर हैं। बताइए अगर हम तौहीद के मौजू पर किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर वो एक क्रॉस क्वेश्चन कर ले, उसके क्रॉस क्वेश्चन का जवाब कुरान में है, हमको नहीं मालूम है क्या देंगे हम? ऐसा हमारा सौतेलापन रिश्ता है कुरान से, तो अल्लाह हमको कैसा बुलंद करेगा बताइए। एक शायर कहता है ना, बड़े शायर गुजरे, क्या कहता है? वो मुअज़्ज़ज़ के जमाने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारीख कुरान होकर, तुम जलीलो ख्वार कुरान को छोड़ने की वजह से हुए हैं। आप एक आयत का तर्जुमा सही करके बताइए, आपने सीखा हो, दूसरों का पढ़ के नहीं, वो तर्जुमान कुरान आप करके दिखाइए। इतना सौतेलापन कुरान से। मैं क्यों कह रहा हूं? कुरान की वजह से शायद बर्बादी है। हदीस है जी, सब जानते हैं हदीस, पढ़ो हदीस में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। अल्लाह तबारक व तआला इसी किताब कुरान मजीद की वजह से बहुत से लोगों को ऊंचाई अता करता है, बहुत से लोगों को जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में फेंक देता है। बताइए, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 3 लोग कत्ल करने आए, सुबह तक कत्ल नहीं कर सके, प्लान करके आए, हथियार लेकर आए। पता है वजह क्या है? वजह यह है कि वो कुरान पढ़ रहे थे, पूरी रात तिलावत कर रहे, मदहोश हो गए कत्ल करने वाले। किसकी मदद आई बताइए? वो हामिले कुरान थे, कुरान को उठाने वाले। अल्लाह ने अपने नुसरत के हाथ में उनको उठाया था। आज हम कुरान को तरक करने वाले, छोड़ने वाले हैं। अल्लाह हमारे हाल पर जरा भी नजरे करम नहीं करता है। कट रहे हो कटो, मिट रहे हो मिटो। अरे तुमने मेरे कुरान को मिटा दिया, कानून को मिटा दिया, मनमानी जिंदगी बसर करने लगे, मैं तुम्हारे हाल की परवाह क्यों करूंगा बताइए? नबी ने फरमाया ना, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन। अगर बुलंद होना है, कुरान को पकड़ो, कुरान को उठाओ। यही वो कुरान है कि बड़े बड़े बादशाह अपने उंगलियों को दांतों तले चबाने पर मजबूर हो गए, जब छोटे से छोटे सहाबा और मुसलमान और मोमिनों ने उनके सामने कुरान की आयतों को पेश करके बताया तो हमें खत्म करना चाहता है, खत्म कर, लेकिन हमारे ईमान को खत्म नहीं कर सकता। क्या वजह थी कि उस वक्त मुसलमानों का वो हाल था, वो पावर था, सुपर पावर में उनका जिक्र होता था, और जिक्र भी ऐसा कि सुनने वालों के कंधे कपकपाते थे। कुरान करीम एक ऐसी किताब है, दुनिया ही बर्बाद नहीं होती है इसको छोड़ने की वजह से, आखिरत भी बर्बाद होती है। हुफ़्फ़ाज़ किराम इस मजलिस में मौजूद है, मुझे आयत तो याद नहीं आ रही है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन कुरान की आयत है, आपको भी शायद मालूम है, ऐ अल्लाह ये मेरी कौम है जिन्होंने कुरान को खेल तमाशा बनाया है, इनका बदला ले ले। जो कुरान को छोड़ेगा दुनिया यानी आखिरत भी बर्बाद हो रही है उसकी। बताइए जरा, पता क्या चला? कुरान को थामना, कुरान को पकड़ना, कुरान को दिल से लगाना, अमली जामा उसको बनाना, ये कौमों की बुलंदी का सबब है।
कौमों के उरूज का सबब है। जितना हम कुरान को छोड़ेंगे अल्लाह हमारे हाल की परवाह नहीं करेगा। हम देते रहे हुकूमतों को दोष, अरे बनाना और बिगाड़ना तो अल्लाह के हाथ में है ना। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अरे हमारा ईमान तो ये है, सूखा पत्ता जो गिरने वाला है, अब वो दरख्त पर कुछ काम नहीं है उसका, वो भी गिरने से पहले अल्लाह से इजाजत लेता है। तो मुस्लिम कौम जो इंटरनेशनल तौर पर है, 57 ममालिक है, उन तमाम की बर्बादी का प्लान दुश्मन कैसे कर सकता बताइए? अगर किया भी तो कामयाब कैसे हो सकता है? बताने का मतलब यह है अमन और सलामती, सुकून, आफियत, राहत, ये जो है अल्लाह की अजीम नेमत है। और इंटरनेशनल तौर पर देखेंगे तो मुसलमान इसको तरस रहे हैं। वजह हुकूमतें नहीं है, सियासत नहीं है, दुनियावी दुश्मनी नहीं है, हमारा खुद का हाल है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि इन ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। आधी आयत में पढ़ा हो, थोड़ा टुकड़ा पढ़ा हो उसका, कि किसी कौम की हालत में उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की फिक्र नहीं करती है। हम बदलने की फिक्र करेंगे तब अल्लाह हमारे हाल की फिक्र और परवाह करेगा। तब अल्लाह फरमाता है ला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। पहला सबब क्या है? कुरान। वक्त भी खत्म हो गया, दूसरा बयान करता हूं, उसके बाद जितने हैं इंशाअल्लाह फिर कभी अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपके गुस्से गुजार करूंगा। दूसरा सबब है सुन्नत को तर्क करना, शरीयत को तर्क करना। इससे कैसे बर्बादी आ सकती है? आप सोच रहे अमन सलामती दूर और बर्बादी हमारी नसीब बन गई है। सबब क्या है वो बयान कर रहा हूं ना मैं। दोनों बातें आपके सामने पेश करता हूं। अगर कोई इंसान सुन्नत को छोड़ता है तो सिर्फ अमल नहीं बर्बाद होता है, अमल भी बर्बाद होता है, अमल करने वाला भी बर्बाद होता है। अल्लाह, अमल भी बर्बाद, अमल करने वाला भी बर्बाद। दोनों बातें पेश करके बात को खत्म कर देता हूं। पहले अमल बर्बाद। अल्लाह के रसूल ने क्या बोला? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, दोनों हदीसों की राविया है, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। कितनी मशहूर हदीस है। जिसने कोई शरीयत के खिलाफ काम किया मरदूद है, अल्लाह उसको हरगिज़ कबूल नहीं करेगा, बर्बाद कर देगा। अमल बर्बाद हुआ ना, अब अमल करने वाला बर्बाद दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा दस्तरखान पर खाना तनावुल फरमाते हैं। एक शख्स आपके सामने खाना खा रहा है बाएं हाथ से। कौन से हाथ से खा रहा है? बाएं हाथ से। यह भी वाकया मशहूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कुल बी यमीनिक, मेरे भाई सीधे हाथ से खाओ। उसने क्या किया? मस्ततअतु, मैं नहीं खा सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू कभी खा भी नहीं सकेगा। एक सुन्नत की खिलाफ वर्जी का नतीजा यह है ऐसा बर्बाद हुआ। सहाबा कहते हैं सारी जिंदगी ये सीधा हाथ अपने मुंह तक भी नहीं उठा सका। एक सुन्नत की खिलाफ वर्जी से लुल्ला होते हैं आदमी। बताइए हम जिंदगी भर सुन्नतों की खिलाफ वर्जी करते और बर्बादी का सबब क्या देते हैं? बीजेपी फला हुआ, वो हुआ, ये हुआ। भाई अगर ये है भी तो हमारी ही वजह से होंगे ना। हाँ, हसन बसरी रहमतुल्लाह ने क्या करवाया? हज्जाज बिन यूसुफ अगर आया है तो हमारे अमल की वजह से ही ना। एक सुन्नत की खिलाफ वर्जी देखिए कितना नुकसान कर देती है। एक सुन्नत की खिलाफ वर्जी जिंदगी भर कर रहे हैं हम। तिजारत में नहीं, जरूरत नहीं है। शादी ब्याह में रिश्तेदार नाराज होते, भाई हर एक की नाराजगी की फिक्र करेंगे तो अल्लाह को कब राजी करेंगे बताइए? हर किस्म के लोग होते हैं यहाँ पर, हर किस्म के लोग होते हैं, हर एक को राजी दुनिया का कोई इंसान नहीं। मेरे आका मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर एक को राजी नहीं कर सके। अरे कत्ल करने पर तुले हुए थे उनके दुश्मन। अल्लाह को राजी कीजिए, अल्लाह के कानून को अपनाने की कोशिश कीजिए, तब अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल की परवाह करेगा। पहला सबब है हमने कुरान को छोड़ दिया। दूसरा सबब है सुन्नत भी हमारी जिंदगी से जा रही है। आप लोग कह रहे होंगे नहीं मौलवी साहब जोर से आमीन बोल रहे ना, हम पैर से पैर मिला रहे ना। 4 सुन्नतें नहीं है, 4 करोड़ सुन्नतें। कदम कदम पर नबी ने सुन्नत सिखाई है। सहाबा बेजरूरी सुन्नत को भी अपनाते थे। उनको मालूम था सुन्नत की अहमियत, उनको मालूम था ये दरवाजा बंद हुआ तो बर्बादी का दरवाजा खुलेगा। यही वजह अब्दुल्लाह बिन मसूद सुने काम से बैठ जाओ। पता नहीं अल्लाह के रसूल किसको बोल रहे थे बैठने खतरे के दौरान। अब्दुल्लाह बिन मसूद के कान में खाली आवाज गई तो चप्पलों में बैठ गए। आज हम सुन्नत की खिलाफ वर्जी करके धड़ल्ले लेके फखर करते। मॉडर्न दौर है हमारा। ये मॉडर्न दौर जहन्नम में जाने वाला मालूम है। जो चमक ये है ये नूर की नहीं नार की चमक है। हम नहीं समझ पा रहे। पता चला
सुन्नत छोड़े तो अल्लाह हमको छोड़ेगा, कुरान छोड़े तो अल्लाह हमको छोड़ेगा। और बहुत सी चीज़ें हैं जो हल और नतीजे के तौर पर बयान करने थे, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन, हर तरफ आज मुसलमान परेशान है, तकलीफ में मुब्तला है। अल्लाह हम सलामती को तरस रहे हैं। अल्लाह ये उनकी मीरास है, उनकी जायदाद है मुसलमानों की। अल्लाह उनकी मीरास उनको अता फरमा, उनको लौटा दे मौला। और लौटाने के लिए अल्लाह जो जो काम करना, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा, मुझको, हम तमाम को, सुनने वालों को, मुसलमानों ने आलम को, वो तमाम काम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।